Can anyone help me out? I have forgotten the name of the chapter. Seriously? Cascading style sheets. Cascading? CSS. Style sheets. Okay. Thank you, Pony. Okay, so cascading style sheets, CSS, it is a style language, and last in the previous class we came to know how to apply the special code of CSS, which is a bit different from regular HTML codes. Okay, but I hope you have understood. Well, so if you have the book, computer book, then open page number 167. If you don't have the book, just you have to look at you have book on the screen, which I'm going to share with you. ठीक है, book है तो अच्छा होगा. I mean, it will be nice क्योंकि ये जो PDF है ये थोड़ा सा. Is it clear? What do you say? Yes, sir. Okay, you can read. Basic selectors in CSS visible. Yes, sir. I don't have any problem. Okay. So we have already seen how to use the CSS code. CSS कोड को कैसे यूज करना है वो हमने एक झलक देख लिया है. अभी एक बार थ्योरी उसको थ्योरी देख लेते हैं. ठीक है, फिर हम लोग प्रैक्टिकल में जरूर जाएंगे. ठीक है, तो आज हम थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल both we will practice. So already we have come to know about the syntax of CSS, and we have seen that how to use CSS language. Now let us go through the bookish language, which of course will help you to create notes, to prepare notes. So first जो हमें selectors दिख रहे हैं वो है universal selector. Now, if you can remember, in previous class, I told you how to apply different format for different element. ठीक है, हमने P element के लिए अलग formatting यूज किया, हमने H1 के लिए अलग formatting यूज किया, हमने Li के लिए अलग formatting यूज किया. Now, if you want कि भाई same formatting में मेरे सारे element आ जाए, if you want to apply same formatting upon each and every element of your web page, at that time you have to use universal selector. अब ऐसे भी है, universal का मतलब क्या हो, जो हर जगह हो, universal हर जगह सेम. ठीक, तो यूनिवर्सल सेलेक्टर में आता है ये एस्ट्रिक का साइन, स्टार का साइन आपको दिख रहा होगा. जिनके पास बुक है वो पेज नंबर 167 168 168 को ओपन कर लो. और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आई थिंक स्क्रीन इज क्लियर इनफ. वेल, अब ये हमको तो पता चल गया चलो कि जो एस्ट्रिक है, ये स्टार साइन है, वो यूनिवर्सल सिलेक्टर है. अब इसे यूज कैसे करें, हाउ टू यूज दिस यूनिवर्सल सिलेक्टर. ठीक है, तो देखते हैं चलो. Okay, Kushal, I hope now the network is proper there. Well, so this is the use of universal selector. Simple, very simple. ये तो कॉमन है, आपको लिखना है. स्टाइल टाइप इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर टेक्स्ट स्लैश CSS. Then you have to use this asterisk sign, star mark you can say, or sign of multiplication. Mathematical terms में ये multiplication है, और कोडिंग के लैंग्वेज में ये एस्ट्रिक है. तो एस्ट्रिक ओपन करने के बाद आपको कर्ली ब्रैकेट यूज करना है, और कर्ली ब्रैकेट यूज करने के बाद जो भी आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है वो आप कर दो. कलर ग्रीन, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल,
देन स्टाइल क्लोज्ड हेड बॉडी। इसके बाद आप H1 यूज करो या P यूज करो या लिस्ट यूज करो, जो भी आप यूज करोगे सब में आपको सेम फॉर्मेटिंग आ जाएगा। तो कौन सा फॉर्मेटिंग आएगा? ये वाला, कलर ग्रीन, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल कर लेंगे, एक बार देख लेते हैं, मतलब बाकी सिलेक्टर्स को देख लेंगे, फिर हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, मतलब करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये तो हो गया यूनिवर्सल सिलेक्टर। फर्स्ट सेकंड क्या है? यूजिंग टाइप सिलेक्टर। अब टाइप की जहां बात आ जाती है तो ऑफ कोर्स वहां कैटेगरी की बात आ जाती है कि भाई तुम किस टाइप के इंसान हो, किस कैटेगरी। तो अलग अलग टाइप के कैटेगरीज होते हैं। तो type selector is used to give different format to different element। यहाँ इसका डेफिनेशन भी दिया गया है। ठीक है, क्या लिखा है कि the type selector or H element selector identifies an element based on its type irrespective of how that element is declared within the HTML document, and then applies the effect that element. Now, can you tell me what, which word we can use instead of effect? मैंने कई बार बोला है उस वर्ड को। यहाँ पर इफेक्ट के बदले में हम लोग कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? कोई रिस्पॉन्स नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से। यस हर्षित, टेक्स्ट मैसेज आया, देखते हैं क्या मैसेज है। आउटपुट थोड़ा सा आगे हो गया बेटा। देखो सीएसएस का यूज किस लिए करते हैं? कई बार मैंने कहा है कि सीएसएस का यूज किस लिए करते हैं। तो यहाँ इफेक्ट को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं विच वर्ड, किस वर्ड के साथ? कोई नहीं बात कर रहा भाई, कैसा हो गया? सब सो गए क्या? वेकअप वेकअप। ठीक है, देखो इफेक्ट के प्लेस में हम लोग यूज कर सकते हैं दिस वर्ड। और मैंने इसको कई बार बोला है, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हो, ध्यान दिया करो सब। ठीक, फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेटिंग भी कह सकते हो, फॉर्मेट भी। ठीक, तो टाइप सिलेक्टर का यूज हमने ऑलरेडी कर लिया है जब हम प्रैक्टिकल कर रहे थे। तो उस टाइम हम लोगों ने देखा कि टाइप सिलेक्टर कैसे यूज करना है। तो जस्ट लुक हियर, फॉर H1 different formatting is there, different effect is there for P different। H1 के लिए बोल्ड है, फैमिली फॉन्ट जो है वो एरियल है, और कलर क्या है? रेड। और P के लिए क्या है? कलर ग्रीन, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। एंड हियर इज द आउटपुट। यहाँ पर आउटपुट को देख सकते हो। आई थिंक इट इज क्लियर टू सी। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेलेक्टर का भी यूज करना है जब आपको सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है, और टाइप सिलेक्टर का भी यूज करना है जब आपको डिफरेंट एलिमेंट में डिफरेंट फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। नेक्स्ट, एक बहुत ही खतरनाक सिलेक्टर है जिसका नाम है क्लास सिलेक्टर। Now, this is the I would say this is the integrated part of universal and type selector. ठीक है, integrated why I'm saying because see, अभी आपको एक ऐसा वेब पेज डिजाइन करना है, ठीक है, जिसमें आपको स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है और बाकी को अलग रखना। दैट मीन्स यू कैन से इन सिंपल लैंग्वेज कि कुछ ऐसे एलिमेंट हो जिनका फॉर्मेटिंग स्टाइल एक जैसा हो, और कुछ ऐसे एलिमेंट हो जिसका फॉर्मेटिंग स्टाइल उससे डिफरेंट हो, अलग हो। मतलब ब्लैक कलर के फॉन्ट है, सपोज पैराग्राफ में ब्लैक कलर के फॉन्ट है, लेकिन आप H1 में रेड कलर के फॉन्ट डालना चाहते हो और लिस्ट में आप फिर ब्लैक डालना चाहते हो। तो that is called combination of, sorry, you can say combination or integrated part of universal and types। तो देख लेते हैं इसका
यूज क्या है, पहले एक बार पढ़ ही लेते हैं। अ क्लास सेलेक्टर लेट्स यू अप्लाई CSS स्टाइल्स फॉर अ ग्रुप ऑफ HTML। आगे ग्रुप, ठीक है। Once the properties are defined, these properties can be applied to different HTML elements of the same type with a specific class। सर ये तो ऊपर से गया होगा, चलो मैं समझा देता हूँ, ये एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। सी so when you want to use class selector, at that time you have to define a name for the selector, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एन एग्जाम्पल यू कैन सी एक क्लास सेलेक्टर का नाम डिफाइन किया गया है डॉट माई क्लास अंडरस्कोर है ऑफ कोर्स, डॉट माई अंडरस्कोर क्लास, यही है हमारा क्लास सेलेक्टर का नाम, ठीक है। अब इस क्लास का इफेक्ट क्या रहेगा, फिलहाल तो यहाँ कलर दिया गया है, बस कलर क्या होना चाहिए, रेड। यू कैन यूज ऑल द फॉर्मेटिंग्स, फॉन्ट वेट, फॉन्ट फैमिली, साइज, कलर, आप सब कुछ अप्लाई कर सकते। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ माई क्लास सेलेक्टर, ये जो हमने यहाँ कुछ नया ऐड किया है, इसका यूज कहाँ होता है आगे देख लो। Now here you can see the use of class selector. Here you can see that h1, ठीक है, h1 then class is equal to my class, so my class means this one, और my class में आपके फॉर्मेटिंग या इफेक्ट क्या है, उसका कलर क्या होना चाहिए, रेड। तो इसीलिए h1 का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, रेड। लेकिन h1 का जो साइज है, आप जानते हो h1 का साइज थोड़ा लार्ज होता है, फिर h2, h3, h4, h5, h6, h6 तक होता है, ठीक है। तो h1 का फॉन्ट साइज जो है उसका एक अपना फॉन्ट साइज है, हालांकि आप बड़ा छोटा कर सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। उसके बाद हमने माई क्लास को कहाँ अप्लाई कर दिया, p में भी अप्लाई कर दिया, p देन क्लास इज इक्वल टू माई क्लास, देन कुछ जो टेक्स्ट लिखा गया है दैट यू कैन चेंज एनीथिंग एल्स। सो नाउ सी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा उसका आउटपुट, क्लास सेलेक्टर का कलर भी रेड है और पी का भी कलर रेड है, ठीक। अब कहीं आपको कलर चेंज नहीं करना है तो फिर आप उसमें माई क्लास मत यूज करो, सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लास सेलेक्टर, और इसका अगर एक प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं तो अच्छी बात है ना, क्या बोलते हैं, एक प्रैक्टिस हो जाए, कुछ तो रिस्पॉन्स दो भाई। आई थिंक एक प्रैक्टिस जरूरत है, तो हमने ओपन किया नोटपैड जिसमें हम HTML का कोड लिखेंगे। माई क्लास बेटा नंदिका, इट इज नॉट लाइक दैट कि आपको माई क्लास ही यूज करना है, आप कोई भी नाम यूज कर सकते हो, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू, क्लियर। ये तो फॉर एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर माई क्लास लिखा है, ठीक है, ओके। तो चलो शुरू करते हैं भाई आज का HTML। फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं 24, ओके। ओके, तो सबसे पहले हमको लिखना है HTML, उसके बाद हमको लिखना है हेड, फिर उसके हेड के अंदर हमको लिखना होता है टाइटल। देखो फिर से एक बार याद आ जाएगा आप लोग को टाइटल में हम लोग लिख देते हैं क्लास 10th बी, बी फॉर बेस्ट, है ना, क्या बोलते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे स्टाइल, है ना, इज इक्वल टू, फिर डबल कोटेशन के अंदर हमको क्या लिखना होता है, टेक्स्ट पब्लिक CSS। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या यूज करना चाह रहे हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर का साइन ये है एस्ट्रिक, क्लियर। अब एस्ट्रिक के अंदर हम फॉर्मेटिंग, जो भी फॉर्मेटिंग हमको चाहिए हम वो लिखें, ठीक। तो मान लो कलर हम लिख देते हैं
क्या लिखें भाई? चलो फिर यहाँ पर रेड लिख देते हैं। इसके बाद हम चाहते हैं कि फॉन्ट जो हो वो हो मोनोटाइप कर्सिवा, है ना? तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? फॉन्ट फैमिली। कौन सा फैमिली? मोनोटाइप कर्सिवा। उसके बाद और क्या फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं? बोल्ड कर देते हैं, क्या दिक्कत है? बोल्ड करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा? फॉन्ट वेट बोल्डर, और ज्यादा बोल्ड। ठीक है, अब कर ली ब्रैकेट। सो ये एस्ट्रिक का मतलब ये हो गया कि इसके बाद जो भी आप ऐड करोगे वो सब क्या होगा? वो सब में सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए। ठीक है। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं स्क्रीन शेयर नहीं किया था ना। वेट वेट, थैंक यू बेटा फॉर रिमाइंडिंग। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके ओके ओके, मैंने लिख दिया है अभी, आपको दिख रहा होगा। HTML, फिर HTML के बाद टाइटल, क्लास 10th है ना, 1 हो गया। चलो क्लास 10th भी स्टाइल, ये लिखना ही पड़ता है आपको CSS में। ये हेडर फाइल कह सकते हो इसका। उसके बाद एस्ट्रिक जो कि यूनिवर्सल सिलेक्टर है। देन कर्ली ब्रैकेट ओपन। कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने ये फॉर्मेटिंग अप्लाई किया। कलर रेड, फॉन्ट फैमिली मोनोटाइप कर्सिवा, फॉन्ट वेट बोल्डर। अच्छा, साइज भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, है ना? साइज के लिए क्या लिखना पड़ता है? साइज के लिए सिर्फ साइज ही लिखना पड़ता है ना। साइज कर देते इसका 30 पिक्सल। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार। ये फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई किया। अब बॉडी के अंदर जो है हम क्या करेंगे? हम अभी वेब पेज को डिजाइन करते हैं। जो कंटेंट है वेब पेज का वो डाल देते हैं, फिर देखते हैं वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है जो हमने अभी फॉर्मेटिंग अप्लाई किया। तो हम शुरू कर रहे हैं P से। हेलो स्टूडेंट्स, और विल नहीं करते, इस वजह से करते हैं वो लाइक टू डांस। अगला क्वेश्चन, would you like to sing? क्वेश्चन ये ऐसे ही हम वेब पेज डिजाइन कर रहे हैं। तो क्या लिखें? मुझे लाइक कुक। ठीक है, उसके बाद पी को क्लोज कर देते हैं। लेकिन एक चीज छूट रहा है, कुछ छूटा है क्या? देखा था एक बार। इधर इसको ओपन कर देते हैं, HTML को क्लोज कर देते हैं। बॉडी का जो क्लोज होगा, बॉडी के बाद HTML क्लोज होगा। और हेड को हमने कहीं क्लोज किया है क्या? नहीं, हेड तो क्लोज ही नहीं हुआ है। तो यहाँ बॉडी के पहले हेड क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं। नाउ सी, कुछ छूटा है? Sir, from few days you are not uploading recording in portal. यस बेटा, डिग्री है। Sir, you are not uploading the recording in portal. आई थिंक लास्ट क्लास मिस हो गया, मैं कर दूंगा, डोंट वरी, आई विल अपलोड। ठीक है, ओके ओके, नाउ कम बैक टू दिस।
HTML फाइल। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एस्ट्रिक का यूज किया गया है वो यूनिवर्सल सिलेक्टर है। अब इसे सेव किया जाए, सेव करने के बाद हम इसे ओपन करके देखेंगे हमारा काम बना कि नहीं बना। ठीक है, तो इसे हम सेव करते हैं डेस्कटॉप में और नाम देते हैं CSS trial .html। ये भूलना नहीं, इसको भूल जाओगे तो फिर काम नहीं बनेगा। सेव। अब चलो डेस्कटॉप में चलते हैं। ये है हमारा डेस्कटॉप और ये है हमारा फाइल। मैं इधर लेके आया, दिख रहा है आपको। इसको ओपन करते हैं। हाँ भाई, गूगल क्रोम से ही ओपन करना चाहते हैं। ओके। अरे ये तो हुआ नहीं, क्या गड़बड़ हुआ है बताओ। कुछ तो गड़बड़ हुआ है। एक मैसेज आया, लगता है उनको गड़बड़ का पता चल गया। सर स्टाइल नहीं लिखे हो, स्टाइल नहीं लिखे हो। कहाँ लिखना है स्टाइल? स्टाइल टाइप लिखना था। स्टाइल तो लिखा गया है, यहाँ टाइप छोड़ दो। देखा, एक कुछ मिस हो जाता है तो हमारा काम नहीं बनेगा। यहाँ पर स्टाइल टाइप लिखना जरूरी है। अब इसको रिफ्रेश मार के स्टाइल टाइप। अच्छा, स्टाइल को क्लोज भी तो करना पड़ेगा। स्टाइल को क्लोज भी नहीं किए थे हम लोग। यस हर्षित, हमने इसको क्लोज नहीं किया था, ये तो एक गलती है, मिस्टेक। कोई बात नहीं। अभी फॉन्ट साइज में थोड़ा सा गड़बड़ है ना। फॉन्ट साइज बहुत ही छोटा दिख रहा है, इतना छोटा तो नहीं दिखना चाहिए। फॉन्ट ही तो लिखे नहीं है हम लोग। यहाँ फॉन्ट लिखना पड़ेगा ना भाई। FONT-साइज 30 पिक्सल। अब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट। यस, तो नाउ यू कैन सी। ठीक है, अब ये इसके आगे जो भी आप ऐड करोगे, आप चाहे H1 ऐड करो, H2 ऐड करो, सब में यही फॉर्मेटिंग अप्लाई होना है। आप लिस्ट बनाओ, एनीथिंग कुछ भी आप करो, उसमें सब में यही फॉर्मेटिंग अप्लाई होगा। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर यूजफुल तब है जब आपके पूरे वेब पेज में सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो टेक्स्ट के लिए, है ना। तब आपके लिए काम आएगा यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है, अभी हमने p एलिमेंट का यूज किया है, तो वी हैव सीन दैट यस इट इज वर्किंग। यू कैन सी वंस अगेन। ठीक है, ये काम कर रहा है। अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो ऑफ कोर्स किया जा सकता है। p के बदले में हम लोग क्या ले सकते हैं? p के बदले में हम लोग चलो H2 ले लेते हैं। This is CSS coding। ठीक है, ब्रेक यूज कर देते हैं तो नीचे आ जाएगा। दो ब्रेक यूज कर देते हैं, BR। इसके बाद इसे सेव करो, उसके बाद आओ अपने पेज में और रिफ्रेश करो। सी H2 में भी वही फॉर्मेटिंग अप्लाई हुआ जो P में हुआ। ठीक है, इस 30 पिक्सल को हम लोग कर देते हैं 60, तो ये साइज डबल हो जाना चाहिए। चलो देखते हैं डबल होगा ही नहीं। हाँ भैया, हो गया, क्या बात है। ठीक है, तो H2 में भी वही, P में भी वही। ये है हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर। अब इसको हम लोग बदल देते हैं टाइप सिलेक्टर। टाइप सिलेक्टर में फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें P अलग से लिखना पड़ेगा, हमें H2 अलग से लिखना पड़ेगा। ठीक है, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। अब एक आखिरी बचा है क्लास सिलेक्टर। ठीक है, क्या बचा है? क्लास सिलेक्टर। तो मैं यहाँ जैसे बुक में दिया गया है माई क्लास, आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, यू कैन चेंज इट। तो डॉट
my underscore class, है ना, यही था। एक बार देख लेते हैं कहाँ गया, ये है क्लास सिलेक्टर, यस, डॉट माई अंडरस्कोर क्लास। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ, कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ, ठीक है। अब ये यूनिवर्सल नहीं रहा, ये क्लास सिलेक्टर बन गया। अब इसे सेव करते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद हम वापस आके अपने वेब पेज को देखते हैं, तो सारा फॉर्मेटिंग गयो, ये जो डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग है वही हमको दिख रहा है ना। तो अब हम इसे माई क्लास को अप्लाई करेंगे पी के लिए, तो देखते हैं, यहां से आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पी के बाद लिखना होगा क्लास इज इक्वल टू माई क्लास, जैसा आपने यहाँ लिखा है माई अंडरस्कोर क्लास, यहाँ पर लिख दो। अब इसे सेव कर दो। अब देखते हैं सिर्फ पी में अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको रिफ्रेश किया जाए, यस, पी में तो माई क्लास अप्लाई हो गया, लेकिन H1 में नहीं। क्लियर? आई होप थिंग्स आर क्लियर। गिव मी रिस्पॉन्स प्लीज, नहीं तो लगेगा कि आप सो रहे हो। Yes, sir. माई क्लास को अगर हम चेंज कर देते हैं, माई क्लास को हम लोग कर देते हैं योर क्लास, योर क्लास को भी तो यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, योर क्लास, योर क्लास, ठीक है। और इसे हम कर दिए सेव। अब चलते रिफ्रेश, यस, ये काम करता है। अब माई क्लास लिखो, योर क्लास लिखो, चलेगा, नो इश्यूज देयर। हाँ, तो क्या बोल रहे हो, सब क्लियर है? चलो, तो फिर आज के लिए इतना ही। घर में एक बार आप प्रैक्टिस करें, जिनके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है दे मस्ट प्रैक्टिस ऑन इट। अगेन आई एम सेइंग कि आपके वोकेशनल सब्जेक्ट जो है वो आपके मेन सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस हो सकता है। अगर किसी मेन सब्जेक्ट में कम मार्क्स मिलता है तो आपका वोकेशनल का मार्क्स उसमें चला जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, दैट इज रियली नाइस थिंग। ओके देन, गुड डे ऑल ऑफ यू, सी यू टुमारो। Tomorrow we have again computer period. Good day.